Namaskar. Again, I came with very important topic: ethyl and methyl alcohol. Means pharmacology of alcohol. It is very important for either medical students, dental students, nursing, physiotherapy, and other allied health sciences. So, what do you mean by ethyl and methyl alcohol? So, let's discuss with ethyl alcohol. लेकिन इसमें आई वांट टू से समथिंग कि those alcohol which used to drinks, that is basically ethyl alcohol, as is shown in the figure also. So let's come to the ethyl alcohol. So basically what is ethyl alcohol? So alcohols are hydroxy derivative of aliphatic hydrocarbons basically. Pharmacology of alcohol is important because its presence in several beverages and it is very famous nowadays actually. So that's why it is very important for pharmacology of, and you have to know what is the pharmacology behind alcohol. And alcohol is basically manufactured by fermentation of sugars को fermentation करने के बाद alcohol release होते हैं. This is the formula of sugar. Chemical formula of glucose is C6H12O6. So on the presence of yeast, it can ferment to 2CO2 plus 2C2H5OS. This is the chemical formula of ethanol, means ethyl alcohol. It is also called ethyl alcohol. So ethyl alcohol is basically fermented from glucose in the presence of yeast. It is a hydroxy derivative of aliphatic hydrocarbons. So what is alcoholic beverages? As I told you, the pharmacology of alcohol is very important because presence of this ethyl alcohol in alcoholic beverages. So you can categorize alcoholic beverages in different parts. The first one is malted liquors. So what do you mean by malted liquors? Malted liquors basically obtained by fermentation of germinating cereals like rice, wheat, etc. are undistilled. Alcohol content is low, 3 to 6%. आप बोलेंगे कि malted liquors है क्या? Its example is beers, stouts, and nowadays strong beers also up to 10% are available. So beer is available in mild and stronger form also. Mild form 3 to 6% alcohol content is there. In a strong beer it's up to 10% are also available. So these are the example of malted liquors, and malted liquors basically fermented by germinating cereals. Okay, another beverages, very famous beverages which is composed by alcohol, that is wines, and produced by fermentation of natural sugars. अब natural sugars क्या होता है? Natural sugars basically present in fruits like grapes and other fruits, orange and other things. These are also undistilled. So wines are categorized under flowing ways. These are light wines. Light wines में claret and cider. Claret of red wine, example is a red wine, है ना. इसमें alcohol content is 9 to 12% and cannot exceed of 15%. इसमें alcohol content 9 to 12% रहेगा, लेकिन you have to don't cross them 15%, है ना. This example red wine, cider. This is example of light wines. Another is fortified wines. Fortified wines में आपका port and sherry, the alcohol content is 16 to 22%, and this is distilled beverages for added from outside. Another is effervescent wines. Effervescent wine में champagne is a best example of effervescent wine because it contains more carbon dioxide. तो फीज ज़्यादा आते हैं, इसीलिए आप देखेंगे जो सेलिब्रेट होते हैं, चाहे बर्थडे सेलिब्रेशन और अदर कुछ सेलिब्रेशन, तो उसमें शैम्पेन ओपन करते हैं. तो शैम्पेन ओपन करते फीज बाहर आते हैं. तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द एफरवेसेंट वाइन्स. तो इसमें अल्कोहल कंटेंट आपका रहेगा 12 to 60% ऑफ अल्कोहल. इट्स बोटल बिफोर फर्मेंटेशन इज कंप्लीट. इसको फर्मेंटेशन कंप्लीट होने से पहले ही बोटल में कर दिया जाता है, इसलिए CO2 आपका इसमें प्रेजेंस ज़्यादा होगा, फीस ज़्यादा निकलते हैं. सो दैट्स व्हाट इज यूज्ड फॉर द celebration of different various parties and birthday party also. So this is the various types of wines, light wines, fortified wines, and the
effervescent wines. Or this is very important for Viva question as well as MCQ. What are the alcohol contents of various wines, no, and other malted liquors and other things. So these are the example of alcohol beverages: malted liquors, wines, and another important beverages are spirits. Spirits are like this. This is a distilled after fermentation. An example of spirits are rum, gin, whiskey, brandy, vodka. The most famous beverages nowadays, and maximum adult people are consuming, that is rum, gin, whiskey, brandy, vodka. It is nothing but spirit. Though the alcohol content of these can vary from 40 to 55%, 40 to 55% in India, and you can say it is almost internationally all over the world. I think it is almost 40 to 55% there in the spirit, in rum, gin, whiskey, brandy, vodka, etc. For all licensed brands, basically it is raised to 42.8% volume by volume or 37% weight by weight. तो दिस इज स्टैंडर्ड, और जितने भी ब्रांड है, ब्रांड लाइसेंस्ड कंपनी, दे हैव टू फॉलो दिस 42.8% volume by volume and 37.5% weight by weight. So these are also very important beverages, है ना. जो तीन बेवरेज माल्टेड लिक्विड्स, एक हो गया, दूसरा वाइन्स एंड तीसरा स्पिरिट्स. सो दीज आर द फेमस बेवरेजेस विच आर पीपल यूज टू कंज्यूम, and various percentage of alcohol present in these beverages. That's why it is very important to know what is the pharmacology of alcohol. So that's why it is very important to know pharmacology of alcohol. Okay. So what is the pharmacological actions? अब अल्कोहल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर कंज्यूम भी होता है, तो इसका एक्शन क्या होगा, कहाँ पे क्या एक्शन होगा, लोकल एक्शन क्या होगा अगर हम अल्कोहल यूज करते हैं लोकली. तो लोकल एक्शन स्किन पे यूज करेंगे तो रूबिफेसेंट रेडनेस ऑफ द स्किन, काउंटर इरिटेंट. बाय इवापोरेटर इट प्रोड्यूसेस कूलिंग. अगर आप स्किन पे रखते हैं तो आफ्टर द इवापोरेशन इट प्रोड्यूसेस कूलिंग. अब बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट इट कैन बी used to reduce body temperature. स्पॉन्ज में एज ए स्पॉन्ज यूज करते हैं अल्कोहल, क्योंकि बाई इवापोरेशन, अगर इवापोरेट जैसे स्किन पे लगाएंगे इवापोरेशन होगा, क्योंकि इट इज़ वोलेटाइल लिक्विड्स, और इवापोरेशन होते ही कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. एंड ऑल्सो इफ अल्कोहल अप्लाइड टू डेलिकेट स्किन, अब डेलिकेट स्किन मान लो स्क्रेटम है और म्यूकस मेम्ब्रेन, देन इट प्रोड्यूसेस इरिटेशन एंड बर्निंग सेंसेशन. अगर आप नॉर्मल स्किन पे डालेंगे या ऐड करेंगे, इफ यू अप्लाइड ऑन नॉर्मल स्किन देन इट प्रोड्यूस ऑन इवापोरेशन इट प्रोड्यूसेस कूलिंग. ऑल्सो इट इज एक्ट एज रूबिफेसेंट, काउंटर इरिटेंट. ओके, बट इफ यू अप्लाई इन डेलिकेट स्किन or mucous membrane it produces irritation and burning sensation. If also injected subcutaneously it causes intense pain, inflammation, necrosis followed by fibrosis. If it injected subcutaneously, अगर by chance अगर subcutaneous injection लगाते हैं तो it will cause intense pain, inflammation, necrosis and fibrosis. And also if ethyl alcohol injected around nerve then it produces permanent damage. अगर नर्व के आसपास अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं सबक्यूटेनियसली तो इथाइल अल्कोहल कैन कज परमानेंट डैमेज ऑफ पार्टिकुलर नर्व. सो दीज आर द एक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल ऑन लोकली. अगर लोकली हम अप्लाई करते हैं तो व्हाट आर द एक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस इथाइल अल्कोहल. अनदर एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. It is very important because alcohol, maximum people produce the CNS symptoms after consumption of the alcohol. So what are the symptoms or what are the condition when you consume alcohol can produced by the central nervous system? So these depends on basically plasma concentration. Okay, so if the 30 to 100 milligram of plasma concentration, मतलब ये आप ऐसा मान लो plasma concentration जितना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम होगा उसी हिसाब से सीएनएस सिम्टम्स होगा. इट इज़ डिपेंड ऑन डोज डिपेंडेंट मैटर.
If somebody have taken a small doses, also per action of the alcohol on CNS like that. If in moderate doses, if in severe excessive alcohol consumption, so these are the basis on consumption of the alcohol, quantity of consumption of the alcohol. So if you measure plasma concentration, so on the basis of plasma concentration, if we found 30 to 100 milligram per day plasma concentration, then it will act as an anxiolytic, causes euphoria, excitation, hesitation, caution are lost, because caution are totally lost, impaired coordination, मूड एंड फीलिंग आर अल्टर्ड. जो उसका मूड होगा वो अल्टर हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम होगी. सो दीज आर द एक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय इथाइल अल्कोहल व्हेन योर प्लाज्मा कंसंट्रेशन रीच 30 to 100 मिलीग्राम पर डीएल. अगर 100 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होते हैं, जैसे लाइक 100 to 150 मिलीग्राम पर डीएल, देन इट विल प्रोड्यूस मेंटल क्लाउडिंग, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थॉट and impairment of memory and drowsiness. Again, if plasma concentration more than 150 milligram, like 150 to 200 milligram, then it will produce ataxia, slurring of speech and loss of judgment. It is also, that's why it is said that do not drink and drive, because alcohol consumption causes loss of judgment and also impaired coordination leading to accident. That's why you should not drink and drive. If you increase, if the more than 200 milligram per dl plasma concentration, अगर 200 से 300 milligram है, तो they will cause stupor and unconsciousness. So these are the actions produced by the ethyl alcohol when consumption on different quantity, है ना, on small quantity, moderate, more moderate, and the severe, depends on the plasma concentration. Action on cardiovascular system. What are the action of cardiovascular system? So if you take in a small dose, अगर आप small dose में लेते हो, तो it will produce only cutaneous, especially on the face, and gastric vasodilation. इसीलिए आप देखेंगे जो स्मॉल डोज में हल्का अल्कोहलिक्स होती है या ड्रिंक लेके निकलते हैं, तो फेस रेडनेस हो जाता है बिकॉज ऑफ क्यूटेनियस फ्लशिंग ऑफ द स्किन, एंड स्किन इज वार्म, फ्लश्ड एंड बीपी इज नॉट अफेक्टेड. बट अगर स्मॉल डोज में लेते हैं, इफ यू टेक ए स्मॉल डोज एल्थाइल अल्कोहल, सो ब्लड प्रेशर इज नॉट फ्लक्चुएटेड, ब्लड प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड. बट इफ इन मॉडरेट डोजेज, अगर मॉडरेट डोज में लेते हैं, स्मॉल डोज से थोड़ा ज़्यादा डोज लेते हैं, इट कजेज टैकीकार्डिया, हार्ट बीट इंक्रीज करेगा, माइल्ड राइज इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. सो इफ यू टेक इथाइल अल्कोहल इन मॉडरेट डोज, या थोड़ा डोज ज़्यादा करने पे, it will cause tachycardia and also slightly increase the blood pressure because of increased muscular activity and sympathetic stimulation. It will stimulate the sympathetic system resulting increased blood pressure. And if you take large dose, अगर लार्ज डोज में हम अल्कोहल लेते हैं, तो इट कजेज मायोकार्डिया एज वेल एज वैसोमोटर सेंटर डिप्रेशन, देर इज फॉल इन ब्लड प्रेशर. सो इसमें क्या हो रहा है, अगर इफ़ यू टेक इन स्मॉल डोज, देन ब्लड प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड, और इफ यू मॉडरेट डोज, ब्लड प्रेशर may rise, but if you take in large dose, blood pressure falls. So here the small dose not affected, moderate increase BP, and large dose decrease BP. It is very important, and it is very important for viva question, multiple choice question. अगर स्मॉल डोज में लेते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ब्लड प्रेशर पे, मॉडरेट डोज में ये इंक्रीज कर सकता है ब्लड प्रेशर, लेकिन अगर लार्ज डोज में हम अल्कोहल लेते हैं तो ब्लड प्रेशर में फॉल्स बिकॉज ऑफ वैसोमोटर सेंटर डिप्रेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. दिस आर द एक्शन ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इफ यू टेक अल्कोहल. व्हाट आर द एक्शन ऑन ब्लड? ब्लड पे क्या एक्शन होगा? सो रेगुलर इंटेक ऑफ ए स्मॉल टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल या 1 to 2 ड्रिंक्स हैज़ बीन फाउंड टू रेज HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल. इसमें एक बेनिफिशियल इफेक्ट है ब्लड पे. अगर हम स्मॉल डोज में लेते हैं 1 to 2 ड्रिंक्स, अगर हम इसी लेक्चर में आगे हम बात करेंगे
कि what are the one drinks or two drinks, what are the concentration for one or two drinks ना. तो रेगुलर इंटेक ऑफ small to moderate amount of alcohol, या 1 to 2 drinks you can say, it is found to be raise HDL cholesterol levels. एक्शन ऑन लीवर, लीवर पे क्या होगा, इट मोबिलाइज पेरिफेरल फैट एंड इंक्रीजेज द फैट सिंथेसिस इन लीवर इन डोज डिपेंडेंट मैनर. जितना ज़्यादा डोज उतना ज़्यादा फैट सिंथेसिस. दैट्स वाई द अल्कोहल कैन कज फैटी लीवर बिकॉज इट मोबिलाइज द पेरिफेरल फैट एंड ऑल्सो इट इंक्रीज द फैट सिंथेसिस इन द लीवर. तो इसीलिए फैटी लीवर होने का चांस रहेगा. Chronic alcoholism expose liver to oxidative stress and causes cellular necrosis followed by fibrosis. A chronic alcoholic से बहुत the person is taking alcohol from longer times, 1 साल 2 साल 3 साल, तो बाद में क्या करेगा, लीवर में नेक्रोसिस कर देंगे और फाइब्रोसिस होने के चांस रहेगा. लीवर फैटी लीवर तो होगा ही बिकॉज ऑफ इंक्रीजेज द फैट सिंथेसिस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ पेरिफेरल फैट. बाद में अगर क्रोनिक अल्कोहल लेते रहें तो ये नेक्रोसिस फॉलोड बाई फाइब्रोसिस भी कर सकता है. अनदर एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर, अल्कोहल इज रिप्यूटेड टू कम्बैट कोल्ड. हमने लोकल में बात है, लोकल एक्शन अगर स्किन पे अप्लाई करते हैं तो कोल्ड प्रोड्यूस करता है बाई इवेपोरेशन, कूलिंग इफेक्ट देता है. तो अल्कोहल इज रिप्यूटेड टू कम्बैट कोल्ड. इट डज प्रोड्यूस सेंस ऑफ वार्मथ ड्यू टू क्यूटेनियस एंड गैस्ट्रिक वैसोडाइलेशन. तो बॉडी टेम्परेचर को ये रिड्यूस कर सकता है. रेस्पिरेशन, ब्रांडी एंड विस्की रिपोर्टेड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स. They irritate buccal and pharyngeal mucosa which may stimulate the respiration. तो intake of ethyl alcohol like brandy or whiskey can stimulate the respiration तो by the irritation in the buccal and pharyngeal mucosa. तो ये stimulate करता है, respiration को ये stimulate कर सकता है. GIT में क्या करेगा, gastrointestinal tract हायर कंसनट्रेशन. आप हायर कंसनट्रेशन की तो अगर 20% कंसनट्रेशन से ज़्यादा अगर लेते हैं तो इट विल इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन, causes vomiting, mucosal congestion and also gastritis. किडनी में डायूरेसिस इज ऑफन नोटिस्ड आफ्टर अल्कोहल इनटेक. आप जब भी जो अल्कोहलिक्स है जो अल्कोहल लेते हैं, देखिए अल्कोहल लेने के बाद डायूरेसिस होता है. लेकिन वाई इट हैपन्स, बिकॉज द पर्सन ऑल्सो टेकिंग मोर वाटर विथ अल्कोहल, बिकॉज दिस इज ड्यू टू इंजेस्टेड अलॉन्ग विथ ड्रिंक एज विथ अल्कोहल. ओके, वाटर इंजेस्टेड अलॉन्ग विथ ड्रिंक एज विथ अल्कोहल. एंड ऑल्सो it will going to inhibit ADS secretion, anti-diuretic hormone. It will going to anti-diuretic hormone secretion. So it is induced inhibition of ADS secretion resulting more diuresis. So this is the action of ethyl alcohol on kidney. And action of alcohol on sex. What is the action on sex? So alcohol is known for an aphrodisiac, मतलब it enhances the sexual performance. Aggressive sexual behavior seen initially. However, performance of the sexual act is often impaired. Chronic alcoholism can produce impotence, testicular atrophy, gynecomastia, infertility in both men as well as women. So action of alcohol on sex is initially it will produce as aphrodisiac. No, it will enhance the sexual performance initially, but after some time the performance may be altered. And chronic intake of alcohol, आप regular intake of alcohol can cause impotence, testicular atrophy, gynecomastia, infertility both men and women. इनिशियली तो इन्हेंस करेंगे लेकिन बाद में ये डिमिनिश कर सकते हैं अल्कोहल. इंडोक्राइन इफेक्ट, अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज एड्रेनालिन. एडीआर मीन्स एड्रेनालिन. सो मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल कैन इंक्रीज एड्रेनालिन, दिस रिजल्टिंग टू कज हाइपरग्लाइसेमिया. सो मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल कैन कज हाइपरग्लाइसेमिया बाय इंक्रीजिंग एड्रेनालिन, बट excessive amount of alcohol causes hypoglycemia. Pharmacokinetic, what is important of pharmacokinetics? How alcohol get metabolized in the body. So ethyl alcohol, in the presence of alcohol dehydrogenase, this form is a acetaldehyde.
and they again with aldehyde dehydrogenase is the CO2 plus H2O and excrete out. So byproduct of alcohol is CO2 and plus H2O, and H2O easily it has excrete out from the body. So as far as pharmacokinetic is concerned, ethyl alcohol in the presence of alcohol dehydrogenase it forms acetaldehyde, and acetaldehyde in presence of aldehyde dehydrogenase it forms acetate, and acetate is break down to CO2 and the H2O, and it can easily excrete out from the body. These are the pharmacokinetics for alcohol. Interaction. What are the interactions of alcohol? So alcohol synergize, because alcohol is a sinus depressant as we seen in the above pharmacological action. So alcohol synergize with anxiolytic, antidepressant, antihistaminics, hypnotics, opioids, marked CNS depression. Alcohol itself is a CNS depression. If you give it another CNS depressant drugs, it will mark the CNS depression. That's why it will interact with either anxiolytic, antidepressant, antihistaminic, hypnotics, opioids. So never prescribe with these drugs. Another, individuals taking sulfonylurea, cefaperazone or metronidazole have experienced bizarre like effect, somewhat disulfiram like reaction when they consume alcohol. अगर ये ड्रग ले रहे हैं सल्फोन्यूरिया, सेफापेराजोन, मेट्रोनिडाजोल, तो अल्कोहल नहीं लेना चाहिए. इफ यू टेक अल्कोहल देन इट विल प्रोड्यूस द डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. Aspirin and other NSAID can cause more gastric bleeding when taken with alcohol. Aspirin and other NSAID itself causes gastric bleeding because of it crosses the gastric mucosa, and alcohol also causes gastritis. So if you take alcohol with aspirin and NSAID causes more gastric bleeding. So never prescribe never suggest patient to take aspirin or other NSAID with alcohol. Excessive alcohol consumption causes hypoglycemia, and other hypoglycemic drugs should not be taken. ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल जब लेते हैं या एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन लार्ज डोज हम लेते हैं तो ये प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया. तो अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अगर हम लेते हैं, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, अगर कोई टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट है and they are taking oral hypoglycemic drug. So ऐसा केसेस में if the patient या same person if you are taking alcohol excessive amount, then alcohol also produce hypoglycemia and drug also produce hypoglycemia, then patient may lead to hypoglycemic state. तो ये भी हम should not prescribe it या should not suggest the patient to take other hypoglycemic drug with alcohol. Contraindication. When what the condition and when we should not take the alcohol, it is very easy. कहाँ कहाँ नहीं ले सकते हैं. अब पेप्टिक अल्सर हो रहा है, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रोइसोफेगाइटिस. अब ऐसे केसेस में अल्कोहल आल्सो कॉजेज गैस्ट्राइटिस, है ना. तो ऑलरेडी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अल्सर, हाइपर एसिडिटी. सो इन दिस केसेस the patient should not take alcohol. It is totally contraindicated. Epileptics also seizure attack is there, CNS डिप्रेशन इज देयर. अगर उसमें हम अदर CNS डिप्रेसेंट लेते हैं जो मोटर इनकोऑर्डिनेशन करता हो, जजमेंट लॉस करता हो, है ना, तो ऐसे केसेस में पोटेंशिएट हो सकता है या इट इज प्रोड्यूसेस सम अदर इफेक्ट टू द पेशेंट, अदर अनवांटेड इफेक्ट टू द पेशेंट. सीवियर लिवर डिसीज पेशेंट, अगर ऑलरेडी लिवर डिसीज के पेशेंट है उसमें अगर हम अल्कोहल पर देते हैं तो अल्कोहल कजेज, है ना, मोर सिंथेसिस ऑफ फैट, नेक्रोसिस कर सकते हैं, फाइब्रोसिस तो करता ही है. तो ऐसे लिवर डिपर्स में अगर अल्कोहल सीवियर अगर लार्ज डोज में देते हैं देन यू शुड नॉट गिवन विद द सीवियर डिजीज पेशेंट, देना ही नहीं चाहिए. इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड. अनस्टेबल पर्सनालिटीज, दो अनस्टेबल पर्सन ऐसा ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है ना, उसमें कुछ वो नहीं है, फिजिकल पर्सनालिटीज अनस्टेबल. तो ऐसा केसेस में अगर आप अल्कोहल देते हो तो अल्कोहल आल्सो कजेज अनस्टेबल पर्सन, आल्सो कजेज अनस्टेबल बिहेवियर ऑफ द पर्सन. तो उसमें क्या पोटेंशिएट हो सकता है. तो ऐसे पर्सन में भी अल्कोहल टोटली कंट्राइंडिकेटेड होता है. एंड देन प्रेग्नेंट वुमेन, अल्कोहल कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना, अल्कोहल कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, एंड कज साइड इफेक्ट. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन. प्रेग्नेंट वुमेन में भी नहीं देना चाहिए. तो किस में नहीं देना चाहिए? एक पेप्टिक अल्सर, हाइपरसिडिटी, एसोफेगाइटिस, एपिलेप्टिक्स, सीवियर लिवर डिसीज, अनस्टेबल पर्सनैलिटीज, प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसा कंडीशंस में
अल्कोहल को नहीं देना चाहिए, इट इज़ टोटली कंट्राइंडिकेटेड. Toxicity is very important. If you are taking ethyl alcohol in large doses, excessive doses, so toxicity may happen because acute alcohol intoxication. Acute alcohol intoxication. If somebody taking ethyl alcohol in large doses, in higher doses, then it can cause acute alcohol intoxication, causes also acute alcohol poisoning. Also causes acute alcohol poisoning. The symptoms are unawareness, unresponsiveness, stupor, hypotension, gastritis, hypoglycemia, respiratory depression, coma, and also may lead to death. So these are the symptoms of acute alcohol poisoning by ethyl alcohol, causes acute alcoholic intoxication. How to treat this type of cases? So tracheal intubation and positive pressure respiration may be needed because it causes the respiratory depression. Maintenance of fluid and electrolyte balance, correction of hypoglycemia because it causes hypoglycemia. So आपको correction करना होगा hypoglycemia by giving glucose infusion till alcohol is metabolized. जब तक अल्कोहल टोटली मेटाबोलाइज ना हो जाए तब तक आप ग्लूकोज इन्फ्यूजन देते रहना चाहिए. उसके बाद थायमीन 100 milligram in 500 ml of glucose solution infused IV should be added. Recovery can be hastened by hemodialysis. अगर जल्दी रिकवरी चाहिए तो हेमोडायलिसिस कर सकते हैं. And insulin plus fructose drip has been found to accelerate alcohol metabolism. अब अल्कोहल ज़्यादा जल्दी से जल्दी मेटाबोलाइज हो जाए तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इज CO2 plus H2O. It is totally a harmful product and it may skid out from the body. So जल्दी मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन प्लस फ्रुक्टोज ड्रिप हम दे सकते हैं. ये क्या कर देगा? इट हास्टन या इट स्टिमुलेट द एक्सीलेट द अल्कोहलिक मेटाबॉलिज्म एक्सीलेट हो जाएंगे. मोर एंड मोर अल्कोहल बिकम CO2 plus H2O. It converted into CO2 and H2O. It is easily excreted. So in this way we can treat the acute alcohol intoxication. What is the chronic alcoholism? Chronic alcoholism कैसे होगा, उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो chronic alcoholism, if anybody can taking if you are taking alcohol from longer times, बहुत दिन से अगर अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो क्या उसको बोलते हैं क्रोनिक एल्कोहलिज्म. अब क्रोनिक अल्कोहल जो भी है, जो भी क्रोनिक अल्कोहलिक्स है, वो क्या करेगा? टॉलरेंस डेवलप्स हो जाएगा. टुडे दे आर टेकिंग 1 ड्रिंक्स, tomorrow they are 2 drinks, another day 3, another year 4, another year 5 drinks. So they will develop tolerance and more drinks they need. That is called tolerance develops. Psychic dependence also often occurs when with moderate drinking depends lot on individuals liking and the attitude. साइकिक डिपेंडेंस उसको बोलते हैं अगर रोज़ डेली अगर उनको आदत है, हैबिट है अल्कोहल लेने को, तो दे विल एक्चुअली डिपेंड साइकोलॉजिकली ऑन अल्कोहल. जब तक अल्कोहल नहीं लेंगे उनको नींद नहीं आएगा, अल्कोहल नहीं लेंगे पढ़ने का मन नहीं करेगा, अल्कोहल लेंगे कुछ करने का मन नहीं करेगा. इट टोटल डिपेंड ऑन अल्कोहल, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. तो जैसे एक ड्रिंक अगर लेते हैं तो उनको मूड सही हो जाएगा, वो पढ़ने में भी अच्छा मन लगेगा, खाने में भी मन लगेगा, सोने के लिए भी सही रहेगा. तो ऐसा केसेस को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. साइकोलॉजी उसको हो गया कि हम जब तक अल्कोहल नहीं लेंगे तब तक हमसे कुछ नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड साइकिक डिपेंडेंस. फिजिकल डिपेंडेंस आल्सो अकर्स बट ओनली ऑन हेवी एंड राउंड द क्लॉक ड्रिंकिंग. फिजिकल डिपेंडेंस भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में दोज पेशेंट टोटली दे आर टेकिंग अल्कोहल राउंड द क्लॉक, पूरे दिन भर वो ड्रिंक कर रहा है, यह भी 1-2 दिन है, बहुत लंबे टाइम से. तो ऐसे केसेस में दे आर कॉल्ड फिजिकल डिपेंडेंस. अगर हम विड्रॉल करवाते, विड्रॉल सिम्टम क्या होगा? अगर दे आर गोइंग टू विड्रॉ द अल्कोहल, या उसको हम अल्कोहल छोड़वाना है या नहीं देना है, देन इट विल various symptoms they will shown by that type of patient. That called consist anxiety, sweating, tachycardia, tremor, impairment of sleep, confusion, hallucination, convulsion and collapse. So at a time you cannot withdraw the alcohol. अगर anybody do are chronic alcoholics तो उसमें withdrawal syndrome आएंगे if you are going to stop the alcohol consumption. वो क्या करेगा? एंजाइटी होगा, स्वेटिंग होगा, टैकीकार्डिया होगा, ट्रीमर होगा, इम्पेयरमेंट ऑफ स्लीप, कन्फ्यूजन, कन्वल्जन एंड कोलैप्स भी होने के चांस रहेगा. सो दीज आर द विड्रॉल सिंड्रोम हैव बीन सीन व्हेन वी स्टॉप द अल्कोहल कंजम्पशन इन क्रोनिक अल्कोहलिक्स.
तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? अगर विड्रॉल सिंड्रोम इतना ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा सिम्टम से तो पेशेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे, दे विल नॉट टॉलरेट द सिम्टम विदाउट टेकिंग अल्कोहल. सो हाउ टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ पेशेंट? So first, initially CNS depressant like barbiturates, phenothiazines, chloral hydrate have been used as a substitution therapy in the past, but nowadays benzodiazepines are preferred drugs now. तो एंटी डिप्रेसेंट आप CNS depressant like barbiturate can be prescribed nowadays benzodiazepine there because अल्कोहल ऑल्सो प्रोड्यूस CNS डिप्रेसेंट. तो हमको ऐसा ही ड्रग देना पड़ेगा जो उसको भी CNS डिप्रेस करे. सो अल्कोहल लाइक इफेक्ट, वो भी CNS ड्रग लेके जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता हो उससे सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हुए. तो इसके लिए आप CNS डिप्रेसेंट हम लोग ड्रग दे सकते हैं. नाउअडेज बेंजोडाइज़ेपिन इज प्रिफर्ड ड्रग्स नाउअडेज. अनदर इंपॉर्टेंट ड्रग इज नैलट्रेक्सन. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ द अल्कोहलिज्म. एक तो ये रिलैप्स को नहीं होने देगा. दूसरा, इट रिड्यूस द अल्कोहल क्रेविंग, number of drinking days, chances of the resumed heavy drinking. Naltrexone is an opioid antagonist. It will prevent the relapse of alcoholism और वो अल्कोहल क्रैबिंग को रिड्यूस करता है. अल्कोहल क्रैबिंग जो द अफिनिटी टुवर्ड्स द अल्कोहल, जो क्रैबिंग होता है कि हमको अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल लेना है, उसके बिना हम नहीं रह पा रहे हैं, जो क्रैबिंग है उसको नैलट्रेक्सन क्या करेगा? रिड्यूस करेगा. तो क्रैबिंग रिड्यूस होगा तो पेशेंट अल्टीमेटली डज नॉट टेक अल्कोहल और उसका ड्रिंकिंग पर डे ड्रिंकिंग है नंबर ऑफ, मान लीजिए एक दिन में वो 10 या 15 ड्रिंक लेते हैं तो नंबर ऑफ ड्रिंक विल रिड्यूस एंड चांसेस ऑफ रिज्यूम हैप्पी ड्रिंकिंग. अब ऑल्सो जो उसका चांस है ड्रिंक करने का ज़्यादा लास्ट डोज में हैप्पी ड्रिंकिंग, वो भी रिड्यूस हो सकता है. नैलट्रेक्सन इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन एडजुवेंट एंड कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम फॉर अल्कोहल डिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया एज द मोस्ट डी एडिक्शन सेंटर. Naltrexone is a drug, is opioid antagonist basically. ये approved है, this is approved drug and it is used as a adjuvant in comprehensive treatment program of alcohol dependent subject in any de-addiction center in the India. So this is very important drugs. So and also important for Viva and MCQ also. एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ सेफ ड्रिंक. जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कि सेफ ड्रिंकिंग एक 1 to 2 ड्रिंक्स, इफ यू टेक एक मॉडरेट डोज या स्मॉल डोज, लार्ज डोज, कैसे डिसाइड करेंगे? सो दिस इज द गाइडलाइन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग. सो ऑन एन एवरेज 1 to 2 ड्रिंक पर यूजुअली सेफ. लेकिन बोलेंगे किसको? होम टू से दिस इज 1 ड्रिंक और 2 ड्रिंक. सो 1 ड्रिंक इज इक्वल टू 50 ml ऑफ स्पिरिट, 150 ml ऑफ वाइन्स एंड 400 ml ऑफ बियर. अगर हम एक ड्रिंक की बात करेंगे तो 50 ml ऑफ स्पिरिट हम लेते हैं तो एक ड्रिंक हुआ. जैसे अब स्पिरिट क्या है? रम, ब्रांडी, विस्की, जीन, वोडका. ये अगर हम 50 ml लेते हैं 50 ml तो इसको 1 ड्रिंक माना जाएगा. अगर 150 ml वाइन लेते हैं जैसे रेड वाइन, वो अगर वो हम लेते हैं तो उसको 150 ml को एक ड्रिंक माना जाएगा. अगर 400 ml को बियर लेते हैं, 400 ml अगर हम बियर लेते हैं तो उसको एक ड्रिंक माना जाएगा. यानी 50 ml स्पिरिट 1 ड्रिंक, 150 ml वाइन्स 1 ड्रिंक एंड 400 ml ऑफ बियर इज 1 ड्रिंक. तो एवरेज में 1 to 2 ड्रिंक पर डे इज सेफ. अगर हम स्पिरिट की बात करें, अगर हम विस्की लेते हैं, कोई ब्रांडी लेता है, कोई जीन लेता है या वोडका लेता है, तो 1 से 2 ड्रिंक यानी कि 50 से 100 ml अगर वो लेते हैं विस्की, ब्रांडी या जीन, तो दिस इज सेफ. दैट इज कॉल्ड सेफ. सो एवरेज ऑन 1 to 2 ड्रिंक यूजुअली सेफ, नॉट मोर देन 3 ड्रिंक्स ऑन एनी ओकेजन. अब कैसा भी ओकेजन, मतलब या पार्टी हो या कुछ अदर पार्टी हो या कुछ स्पेशल ओकेजन हो, तो किसी भी ओकेजन पे नॉट मोर देन 3 ड्रिंक, 3 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. दिस इज द गाइडलाइन फॉर सेफ ड्रिंकिंग. कंजप्शन ऑफ मोर देन 3 ड्रिंक्स पर डे इज एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंटेड एडवर्स हेल्थ इफेक्ट. अब जितना भी एडवर्स इफेक्ट हमने बात की है या एक्यूट इंटॉक्सिकेशन का या साइड इफेक्ट का जितना भी हमने बात किया, अगर 3 ड्रिंक से ज़्यादा है, इट इज़ इफ़ यू आर कंज्यूमिंग मोर देन 3 ड्रिंक्स देन इट मे कजेस डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट. डू नॉट ड्राइव और इंगेज इन हजार्डस एक्टिविटीज आफ्टर ड्रिंकिंग. ड्रिंक करने के बाद कभी ड्राइव नहीं करना चाहिए. एज वी डिस्कस्ड इन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन CNS, इट कजेज लॉस ऑफ जजमेंट एंड इन कोऑर्डिनेशन. तो ऐसे केसेस में आपको एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा. जज नहीं कर पाएंगे ब्रेक लगाना कहाँ है, ठीक है. इसलिए डू नॉट ड्राइव. डू नॉट ड्रिंक इफ इंटरैक्टिंग ड्रग हैज़ बिन टेकन.
अगर कोई ड्रग इंट्रैक्शन, हमने ड्रग इंट्रैक्शन बात किया कि अदर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है या मेट्रोनेटाजोल लिया हो या एंटी डिप्रेशन ड्रग ले रहे हैं, उसके साथ ड्रिंक नहीं करना चाहिए। सब्जेक्ट्स विथ एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन शुड नॉट ड्रिंक। अब जितने जगह केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अगर पेशेंट विथ सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, या पेशेंट इज एपिलेप्टिक या प्रेग्नेंट वोमेन हो, तो ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन केसेस में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। So one is very important for Viva question and MCQ, that is one drink is a 50 ml of spirit, 150 ml of wines and 400 ml of beer. This is very important for key point of this lecture. Clinical uses. So on the basis of pharmacological action and other things, what are the uses in which we can use the इथाइल अल्कोहल? सबसे पहले क्या एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, बिकॉज रूबेफेसन काउंटर इरिटेंट, तो स्किन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। 70% अल्कोहल हम अप्लाई करते हैं एज एंटीसेप्टिक। ओके, रब्ड इनटू द स्किन प्रिवेंट बेड सोर्स। अगर हम बेड सोर्स हो गया तो स्किन पे हम रब करेंगे तो प्रिवेंट बेड सोर्स। अल्कोहलिक स्पॉन्जेस टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर इन द फीवर। हमने बताया इफ यू अप्लाई अल्कोहल ऑन द स्किन ऑन इवेपोरेशन इट कजेस कूलिंग इफेक्ट। तो स्पॉन्जेस में अल्कोहलिक स्पॉन्जेस कैन बी यूज टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर इन द फीवर। हाई ग्रेड फीवर में हम अल्कोहल को यूज कर सकते हैं एज ए स्पॉन्जेस। इंट्रैक्टेबल न्यूरालजियाज या ट्राइगेमिनल सीवियर कैंसर पेन, इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल राउंड द नर्व कजेज परमानेंट लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। हमने बताया कि अगर लोकली इफ यू इंजेक्ट सबक्यूटेनियसली अल्कोहल कजेज परमानेंट डैमेज ऑफ द नर्व। तो पार्टिकुलर नर्व के अराउंड अगर सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हो तो इट कैन कज परमानेंट लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, कजिंग द रिलीव ऑफ द पेन इन इंट्रैक्टेबल न्यूरोलॉजियाज और ट्राइगेमिनल न्यूरोलॉजिया। Also as a appetite stimulant, 30 to 50 ml of 7 to 10% alcohol may be taken as a beverages. Appetite stimulant and carminative. भूख नहीं लग रहा है तो भी हम अल्कोहल यूज कर सकते हैं 10% ऑफ द अल्कोहल। रिफ्लैक्स स्टिमुलेशन इन फेंटिंग एंड हिस्टेरिया। अगर कोई पेशेंट फेंट हो रहा है या हिस्टेरिया है तो 1 ड्रॉप इन नोज, एक नोज में 1 ड्रॉप या 1 ड्रॉप कैन बी यूज द इथाइल अल्कोहल। ट्रीट मिथानोल पॉइजनिंग। अगर मिथानोल पॉइजनिंग केसेस में हम ट्रीट करेंगे इथानोल से या इथाइल अल्कोहल से। हाउ विल डिस्कस। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ क्लिनिकल यूजेज ऑफ इथाइल अल्कोहल। व्हाट डू यू मीन बाय मिथाइल अल्कोहल? इथाइल आर 2 types, alcohol are 2 types, ethyl alcohol and methyl alcohols. So let's come to the methyl alcohols. Methyl alcohols are added to industrial rectified spirit to render it unfit for drinking only for toxicological importance. So methyl alcohol never be drink. It is used for industrial purposes and only for toxicological importance. Mixing of methylated spirit with alcoholic beverages. अगर अल्कोहलिक बिवरेजेज है जितने भी माल्टेड स्प्रिट, माल्टेड लिक्वर, वाइन और स्प्रिट, अगर हम दीज अल्कोहलिक बिवरेजेस में मिथाइलेटेड स्प्रिट मिक्स करते हैं तो इट कजेज पॉइजनिंग, कजेज मिथानोल पॉइजनिंग. Methanol is metabolized by formaldehyde. Methanol is metabolized to formaldehyde and formic acid by alcohol and aldehyde dehydrogenase. ये इसमें क्या होगा? Ethyl alcohol also metabolized by alcohol and aldehyde dehydrogenase and methyl alcohol also metabolized by alcohol and aldehyde dehydrogenase. Methanol is a CNS depressant as ethanol is also CNS depressant. So methanol is a CNS depressant. Toxic effect of methanol are largely due to formic acid because methanol on metabolism it form the formic acid. अगर methanol को on the अगर metabolize किया जाए so on the it will resulting formic acid and formic acid is a more toxic. इसमें आप देखेंगे जब इथानोल का मेटाबोलाइज हो रहा था तो it will leads to CO2 and H2O, but when metabolism of methyl alcohol occurs, it will leads to formic acid and formic acid is more toxic. A blood level of 15 mg, more than 50 mg per dl methanol is associated with severe poisoning. ब्लड कंसंट्रेशन अगर 50 मिलीग्राम पर dl से ज़्यादा है तो सीवियर पॉइजनिंग हो सकता है. इवन 50 ml of methanol has caused blindness and 30 ml has caused death, but fatal dose is regarded to be 70 to 100 ml. Even very few
amount 15 ml methanol can cause blindness, and blindness is basically caused by formic acid, क्योंकि after methanol metabolism formic acid is formed and this formic acid is very lethal to the retinal, it can cause the retinal damage. So blindness आपको हो सकता है इन मिथानोल पॉइजनिंग। जब भी कोई भी पेशेंट अगर मिथानोल पॉइजनिंग का है तो सबसे पहले ब्लाइंडनेस ही होता है, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड रेटाइनल डैमेज, और 30 ml से डेथ हो सकता है। लेकिन फैटल डोज का अगर बात करें तो 70 से 100 ml को फैटल डोज बोला जाता है इसमें जनरली। मैनिफेस्टेशन इंक्लूड वोमिटिंग, हेडेक, एपिगैस्ट्रिक पेन, अनइजीनेस, ड्रंकनेस, डिसओरिएंटेशन, टैक्पनिया, डिसोपनिया, ब्रैडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। So if methyl poisoning occurs or if you take anybody take methyl alcohol, then various types of symptoms happens like vomiting, headache हो सकता है, epigastric pain होगा, uneasiness होगा, disorientation, tachypnea, dyspnea, bradycardia and hypotension हो सकता है। Delirium and seizure may occur, the patient may suddenly pass into coma। delirium भी हो सकता है, seizure may happens and बहुत fast suddenly the patient may goes to coma। स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज रेटाइनल डैमेज, ये मैंने पहले भी बताया, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा एंड एमसीक्यू कि स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज रेटाइनल डैमेज। दिस इज अ की पॉइंट ऑफ मिथानोल पॉइजनिंग, द स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी फॉर द फॉर्मिक एसिड इज रेटाइनल डैमेज। ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट ऑफ मिथाइल पॉइजनिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो कीप द पेशेंट इन क्वाइट एंड डार्क रूम, गैस्ट्रिक लवाज विद सोडियम बाइकार्बोनेट इफ पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद इन 2 hours ऑफ पॉइजनिंग। आफ्टर द मिथाइल पॉइजनिंग इफ द पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद इन 2 hours, देन वी कैन यूज गैस्ट्रिक लवाज विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रिवेंट द फर्दर ऑब्जर्प्शन। लेकिन अगर 2 घंटे से ज़्यादा हो गया तो इसका कोई यूज नहीं है। टू कम्बैट द एसिडोसिस, IV सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन कैन बी हैपन। एसिडोसिस हो सकता है, उसको कम्बैट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट IV रूट से हम दे सकते हैं। इथानोल इज प्रिफरेंशियल मेटाबोलाइज्ड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ओवर मिथानोल, एंड इथानोल 10% इन वाटर इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, लोडिंग डोज ऑफ 0.7 ml per kg followed by 0.15 ml per kg per hour। As we know, ethanol is metabolized by alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase. Methanol is also metabolized by alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase. So the affection of attraction of these enzyme of alcohol dehydrogenase or aldehyde dehydrogenase more towards ethanol as compared with methanol. So जैसे ही हम मिथानोल इंड्यूस करेंगे नाइट्रोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा, तो दीज एंजाइम अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इथानोल। सो इथानोल के मेटाबॉलिज्म में ये एंजाइम बिजी हो जाएंगे और मिथानोल को मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। सो मेटाबॉलिज्म इफ डज नॉट अकर्स देन फॉर्मिक एसिड विल नॉट फॉर्म्ड, और मेन इज अ टॉक्सिक इफेक्ट में फॉर्मिक एसिड। तो इसीलिए इथानोल हम दे सकते हैं अगर मिथानोल पॉइजनिंग में, क्योंकि इथानोल अगर देते हैं तो मेटाबॉलिज्म ब्रेक हो जाएंगे और टॉक्सिसिटी नहीं होगा। और अनदर इज हेमोडायलिसिस कैन बी हैपन, आप हेमोडायलिसिस कर सकते हैं फर्दर। दूसरा है द ड्रग फोमेपिजोल, द ड्रग फोमेपिजोल कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। दिस इज द स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज and the drug of choice for methanol poisoning by retarding its metabolism. Loading dose of 15 mg per kg IV followed by 10 mg per kg every 12 hours till the serum methanol falls below 20 mg per dl has been found to effective and safe. आप कैसे ट्रीट करोगे? एक तो बताया कि भाई इथानोल दे दीजिए, आप मिथानोल हुआ है तो इथानोल दे दीजिए, तो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म है वो अट्रैक्ट हुआ द इथानोल। दूसरा सबसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है कि हम मिथानोल मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, तो उसको ही हम रिड्यूस कर दें, इनहिबिशन कर दें, इनहिबिट कर दें, तो एंजाइम रहेगा नहीं। देयर इज एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथाइल अल्कोहल डज नॉट अकर या डज नॉट हैपन, देयर बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन फॉल्स। अब उसको तब तक देते रहना है जब तक प्लाज्मा कंसंट्रेशन 20 mg per dl ना हो जाए, एंड इट इज़ फाउंड इफेक्टिव एंड सेफ।
अनदर फोलेट थेरापी भी हम दे सकते हैं। कैल्शियम ल्यूसोभोरिन 50 मिलीग्राम इंजेक्टेड 6 आवरली हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस ब्लड फॉर्मेट लेवल्स in enhancing its oxidation. It is very also important for treatment of methyl alcohol. So these are the important point of the treatment of methyl alcohol. Thank you. So today I completed the lecture on pharmacology of alcohol, on the ethyl alcohol and methyl alcohol. It is very important lecture for examination point of view also. If my content is good for you, so please like and subscribe my channel. Thank you very much. और